Okay, I'm introducing myself. I'm Rachna Shah. I'm a counselor. So whenever I'm coming on Tare Social, I give like talk on some or the other topic where like it is related to our day-to-day life. And we have started our thing with happiness because everybody wants happiness. Yeah. So my motto is my happiness is my responsibility. Because many a time we depend on other people for our happiness and then we get frustrated. So we generally start our session with that sentence that my happiness is my responsibility. So today Very also true. do that way. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Uh, can we start now? Yes. Okay. So we will start with our motto. When I will say 1, 2, and 3. When I say 3, we all will say it together. Okay. Yeah. 1, 2, and 3. My happiness. My happiness is my is my responsibility. responsibility. Very good. So when we are taking responsibility of our happiness, so that means we and only we will work hard for our happiness. And we are not depending on anybody. If somebody is giving us happiness, that's fine. If they are not giving, God bless them. Right? Yeah. Okay. Now, we have started with this and we have done few sessions about happiness also. So anybody wants to share anything? What have you done for your happiness? Yes, Jagruti ma'am. Basically, I am a dance teacher. I teach dancing, and I had stopped in between because of a domestic problem. But now, at this age, I have started my classes again, and I have all 50 plus ladies in my class, and they are all very happy to learn dancing from me. That's great. Where are you teaching dancing? Where is your dancing I, class? I teach in Santa Cruz in community studio on Tuesdays. Very good, very good. That's a great thing. You have restarted your hobby for your happiness. Yes, yes. I used to teach earlier, but I had stopped in between. Now I've restarted for the last 2 years. Good, good. Anybody else wants to share anything? Yes, I am teaching my grandchildren because I am a retired teacher. So now I've started teaching my grandchildren online because they are sitting in USA, UK, and Australia. Wow, that's a great thing. So you are for your happiness. Teaching is your passion. So you have started teaching your grandchildren so they can you get Yes, the connection also and you get the happiness also, yes. and that is mastery. So by the way, you are teaching only subjects or you are teaching our cultural value or Yes, our language? I am a social studies teacher. So along with history, I am teaching culture also, That's geography right. also, everything. Yeah, that's a great thing because our next generation should know about our country, our culture, and especially when they are Yes. staying abroad, they just I don't am know language I am also. colleague of Mrs. Pusha Planning. Oh, wow. Yeah, Okay. we were working together. Okay. So that's great. That's great. Okay, रजिया मैम, आप तो शुरू से हो हमारे साथ. जानी मैम, बताओ क्या किया, कुछ किया क्या हैप्पीनेस के लिए? हाँ, मैंने किया है. बोलिए. मैं हमारी सोसाइटी में सीनियर सिटीजन इकट्ठे होते हैं, नीचे बैठते हैं. तो जो तारा सोशल में जो छोटे छोटे गेम होते हैं ना, वो उनको खिलाती हूँ, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं. ये वेरी तारा सोशल की गेम. और तो एक और दूसरा काम की मैंने कि हाँ हाँ हमारे जो फैमिली ग्रुप है, यानी बहन और भाई सब, हम मिलकर हर वेंसडे को एक मीटिंग करते हैं. ओके. और वो मीटिंग में मैं ये गेम खिलाती हूँ उनको भी, तो उनको भी बहुत मजा आ जाता है. 15 मिनट. वेरी गुड. सो इसका मतलब है आपने सिर्फ माई हैप्पीनेस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिर्फ आपकी ही नहीं, पूरे कवर कर अब ली. उनको खुश करके मैं भी खुश होती हूँ. अच्छी बात है ना. वो भी एक हैप्पीनेस का तरीका है कि औरों को खुश करके आप खुश Yes, रहो. yes. राइट. Okay. Now I will tell you what I do. Okay. Yes. Can you hear me? Can you hear me? Okay. Sure, yes. Okay. I'm the leader of the Hope and Life, and it's a movement for widows. It's a movement for widows.
We have many widows who are homebound, who cannot come. I had 40 members, but during the pandemic, 20 died. Okay. Oh. 8 are totally homebound. Okay. 5 have gone to the home for the aged. So that is my happiness, to make them happy. That I is a make great them happy. So, That's a great thing. So keep doing it and spread the happiness in the world. So that really nowadays we need it, because nowadays there are so many unfortunate things are happening and people are pulling each other's leg and they are not allowing to happen any good thing. Everybody is blaming each other, but they are not allowing to progress. So now what you are doing is a great thing and good. Okay. Yeah. So today's our topic, as we all know, that is from negative thoughts to healthy thoughts. Positive. Right. So negative thoughts, there are so many negative thoughts and I don't need to number it. ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगी, वैसा होगा तो क्या करूंगी. Like why we get negative thoughts first if anything happens? उसके लिए भी reason है. ऐसा नहीं है कि वो बुरी बात है. See, we need to protect ourselves. That is our first instinct. So, to protect ourselves, हमें सबसे पहले negative thought आता है. जैसे कि घर में कोई और family member है, वो अगर late हो गया, so सबसे पहला thought आता है कहीं accident तो हो गया. So that is negative thought. But why that thought comes? Because we can protect ourselves, our family, or we can work on it, right? But वो शुरू में वो हमारे for us it was working. अभी क्या हो गया है कि वो करते करते काफी टाइम हमारी पैटर्न नेगेटिव थॉट्स पे चली गई एंड कुछ भी होता है फॉर एनी सिचुएशन नेगेटिव थॉट्स. तो हमारी पैटर्न जो ज्यादा नेगेटिव थॉट्स की हो गई है उसे चेंज करना, ब्रेक करना बहुत ही जरूरी है. बिकॉज इट इज नॉट स्टॉप्ड ओनली थॉट्स, इट इज बिकम थिंकिंग. थॉट्स जो होते हैं वो एक होते हैं, दो होते हैं, और वो मेडिटेशन का टाइम हो या ऐसे ही हो, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं. बट नाउ इट हैज बिकम अ थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग. मतलब वो एक थॉट आया, उसके ऊपर हम दूसरा आया, तीसरा आया, और वो हम पूरी स्टोरी बनाते हैं, पूरा वो बोलते हैं ना जाला बुन लेते हैं. तो उसमें हमारा ओवर थिंकिंग भी हो जाता है एंड दैट इज अफेक्टिंग अवर हेल्थ, our physical health, our mental health, our emotional health, many a time our financial health. So negative thoughts, say negative thinking, that is troubling us. अब फिजिकल हेल्थ में बात करें तो हमें नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग आता है तो हमें एसिडिटी हो जाती है, एसिड रिफ्लक्स हो जाते हैं, कभी कभी बॉडी पेन्स आ जाते हैं, राइट? और कभी कभी ऐसे हार्ट बर्न जैसा लगता है. फिर हमारे वेट पे असर हो जाता है, या तो हमारा वेट बहुत गेन करने लगता है या वेट बहुत लूज करने लगता है. फिर हमारी स्लीप पे असर हो जाता है. वी समटाइम्स स्पेंड स्लीपलेस नाइट, क्योंकि वो एक बार विचार की चक्की चालू हुई, वो बंद ही नहीं हुई और हम सो ही नहीं पाए. सो हमारी स्लीप पे असर करता है. देन मैनी अ टाइम वो हमारे इमोशंस को भी कैप्चर करता है. बहुत नेगेटिव थॉट्स हो जाते हैं तो थिंग एक्चुअली नहीं हुई है, बट वो थिंग के बारे में सोच के हम डिप्रेस फील करते हैं. कभी कभी ओवर थिंकिंग की वजह से हम लोनलीनेस फील करते हैं. और कभी कभी क्या होता है, फिर हमारा फोकस नहीं रहता है, बिकॉज वो बैकग्राउंड में वही थिंकिंग चालू है. सो फोकस पे असर होता है, फिर हमारी क्रिएटिविटी पे असर होता है एंड हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी पे भी असर होता है. Are you all agree with me about it? Yes. Anybody wants to add anything के negative thoughts से क्या और problems होते हैं, जैसे कि accident हो सकता है या anything else? Okay, so ये सारे जो problems है. Yes, Bhatnagar ma'am, you want to say something? Yes, I want to say that our social circle also gets limited because of the Right. So socially also we are getting affected कि अपना social circle फिर धीरे धीरे कम होता जाता है. लोग बोलते वो तो हमेशा रोते हुए, उसके साथ बात नहीं करनी है, या हमें लगता है अरे ये तो ऐसी है, वो तो ऐसी है, तो हम धीरे धीरे फ्रेंड्स कम करते हैं. So you are absolutely right. Socially also it is affecting. अब
नेगेटिव थॉट्स जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स देते हैं तो वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम दैट थॉट्स. सो फर्स्ट, सबको मालूम क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है? कि वी अट्रैक्ट द थिंग विच वी थिंक. हम वो चीज को अट्रैक्ट करते हैं जो हम सोचते हैं. अगर पूरा दिन हम जो सोचते हैं तो वो चीजें हमारी जिंदगी में बनती है. ऐसा बोलते हैं एवरीथिंग हैपेंस फर्स्ट इन आवर माइंड एंड देन इन आवर लाइफ. सो पूरा टाइम हम अगर कुछ एंजाइटी में रहेंगे, अगर अभी एज की वजह से हमें लगता है कि हम गिर जाएंगे, कहीं चलेंगे या अनस्टेबल कहीं हो गए तो गिर जाएंगे. सो वो पूरा टाइम हम सोचते रहेंगे हम गिर जाएंगे, हम गिर जाएंगे, गिर जाएंगे, तो हमारे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं. क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वी अट्रैक्ट द थिंग विच वी कीप ऑन थिंकिंग. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर नेगेटिव थॉट्स हमारे ज्यादा रहे तो वो हमारी अगेंस्ट चला जाता है. सो क्या होता है कि हमारी जिंदगी में नेगेटिव बातें ज्यादा बनने लगती है, क्योंकि हम पूरे टाइम वही सोचते रहते हैं. एंड देन हमारा फोकस भी वही चीजों पे जाता है. तो मतलब पूरा दिन हमारा गया, उसमें से 5 चीजें अच्छी हुई, 3 चीजें खराब हुई, बट हमारा फोकस वो 3 चीजों पे जाएगा. 5 चीजें जो अच्छी हुई उस पर ध्यान ही नहीं रहेगा. सो ये हमारे कमी हो जाएगी. दूसरी, जब हम नेगेटिव चीजें ही ज्यादा रखेंगे तो हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड का भाव कम हो जाएगा. अगर हम पॉजिटिव देखेंगे, अच्छी चीजें देखेंगे, तो वी विल फील लाइक ग्रेटिट्यूड, वी विल फील लाइक थैंकिंग पीपल और थैंकिंग गॉड कि गुड दैट आई गॉट दिस, गुड दैट आई गॉट दिस. सो वो सारी नेगेटिव की इफेक्ट्स है. अब नेगेटिव के अपोजिट सीधा हम जाते हैं पॉजिटिव, राइट? तो आप में से सब लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर वीडियो देखा ही होगा. एनीबॉडी ओवर हियर जिसने पॉजिटिव थिंकिंग पे एक भी वीडियो नहीं देखा है? नहीं, सबने देखा है, बराबर है. सो व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग, वो समझाने की जरूरत नहीं है. मैं सिर्फ आप में से किसी से सिर्फ थोड़ा सा सुनना चाहती हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग के इफेक्ट्स नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या है. एनीबॉडी वांट्स टू से? Okay, should I start? Help, Yeah. could be help. Yeah, ma'am. Thoughts which can help others. Right. Somebody who is in our old condition, we can listen to them, Yeah. give them good vibes. Right. So that is the effect of our positive thinking. That is what we are doing. Yes, ma'am. Rajya, ma'am. अब जैसे मैं रिक्शे में से उतर रही थी तो मेरी चप्पल टूट गई, तो मैंने कहा चलो गुड, मेरे को नई चप्पल मिलेगी. Yes, so that is called positive thinking. Okay? कोई भी सिचुएशन है कहीं भी, अरे अच्छा है यहाँ पे और एक काम लगेगा. सो पॉजिटिव थिंकिंग मतलब हर चीज में अच्छाई ढूंढना. पॉजिटिव थिंकिंग मतलब कि बुरा कुछ हुआ है तो भी उसमें कुछ अच्छा छुपा होगा. जैसे पहले लोग बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है. हमारे वी कैन सी ओनली लिमिटेड, वी कैन सी लिमिटेड फ्यूचर एंड वी कैन सी द लिमिटेड वर्ड ऑल्सो. बट जो ऊपर वाला है, गॉड है, ही कैन सी बिगर पिक्चर, उसको बहुत दूर का दिखता है. सो अभी जो चीज हमें लगती है कि नहीं ये मेरे साथ गलत हुआ, वो भी शायद आगे जाके अच्छा हो सकता है, वो हमें मालूम नहीं है. सो वहां पे क्या है कि पॉजिटिव थिंक मीन्स सरेंडर टू गॉड, सरेंडर कंप्लीटली. जो भी होगा अच्छा ही होगा. सो दैट इज सरेंडरिंग, कि जो भी होगा अच्छा ही होगा. गॉड मस्ट हैव थॉट समथिंग अबाउट मी एंड माय लाइफ इज गोइंग. बट अपनी एक पैटर्न थी नेगेटिव थिंकिंग की, उसमें से ये एकदम एक्सट्रीम अदर पैटर्न है. तो कोई भी चीज में एक ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने के बीच में एक पूरा रास्ता है. तो क्या होता है कि नेगेटिव थिंकिंग हमारे पास है ही, क्योंकि वो हमें बचपन से सिखाई है. देखो कहीं ये ना हो जाए, देखो स्ट्रेंजर से बात मत करना, देखो कोई तुम्हें चॉकलेट देके ले ना जाए. सो वो सारी बचपन से सिखाई है, वो हमारे अंदर है. पॉजिटिव थिंकिंग के वीडियोस देख देख के हमको लगता है नहीं हमें सोचना चाहिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. फिर बहुत सारे पॉजिटिव अफर्मेशन आते हैं, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम काम, राइट. सो ये बहुत सारे अफर्मेशन आके वो भी आ गया.
पर उसके बीच की एक जर्नी होती है। ऐसा नहीं है कि आज मैं नेगेटिव थिंक कर रही हूँ, मैंने एक वीडियो देखा, बस कल सुबह से मेरा शुरू पॉजिटिव। नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हमारे इतने साल की एक फितरत है। सो वो फितरत बदलने में टाइम लगता है। वो फितरत ऑल ऑफ अ सडन हम सोचे नहीं बदलती है। फिर क्या होगा, घर वाले बोलेंगे अरे तुम तो इतना मेडिटेशन करते हो फिर भी तुम्हें क्यों गुस्सा आता है। अरे क्या आज मेडिटेशन शुरू किया, कल से गुस्सा बंद नहीं होता है। एक चीज होती है जो हमें नॉलेज है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, पर वो नॉलेज होने के बाद में वो हमारी जिंदगी में लाने में फर्क टाइम लगता लगता है, टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। But many videos shows positive thinking, many videos shows positive affirmation. But maybe वो चीज बताया बहुत सारी फेमस नहीं हुई है कि यहां से वहां तक कैसे जाए। सो आज का जो हमारा सेशन है उसको मैंने बोला है हेल्दी थिंकिंग। सो एक सेशन से दूसरे सेशन, नेगेटिव से पॉजिटिव जाने के बीच में क्या करना है। सो एक चीज जो मैं हमेशा गॉड को प्रे करती हूँ तो बोलती हूँ, मैं गुजराती हूं तो मैं गुजराती में पहले बोलूंगी, भगवान मारा विचार, मारी वाणी અને મારા વર્તનમાં રહેજો। વિચાર ઇઝ थॉट, वाणी स्पीच एंड वर्तन इज बिहेवियर। क्योंकि हमारा जो भी कुछ होता है वो हमारे थॉट, स्पीच एंड बिहेवियर्स होता है। सो पहली जो प्रेयर है वो गॉड, स्पीच, थॉट, बिहेवियर, ये तीनों में रहना। सो क्या है कि हमें सरेंडर की भावना आने लगी कि भगवान हमारे विचार, वाणी और वर्तन में है। सो वो सरेंडर मतलब वो ठीक ही करेंगे, वो ठीक ही होगा। पहले दिन से नहीं होता है बट वो धीरे 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 आएगा। सो वो एक चीज। दूसरी चीज के एकदम पॉजिटिव अफर्मेशन और पॉजिटिव मैं बोलूंगी आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। मेरी पूरी नेगेटिव थिंकिंग है, उसमें से नेक्स्ट डे से मैंने स्टार्ट किया आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। तीसरे दिन इतने मच्छर मिले मुझे गार्डन में, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया। और वो हो गया तो मुझे इतना बॉडी दर्द करने लगा। तो मेरी फितरत तो नेगेटिव थिंकिंग की थी, मैं तो शुरू में थी आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। और ये हो गया, क्या होगा, मुझे गुस्सा आएगा, मैं वापस नेगेटिव थिंकिंग में जाऊंगी। बराबर है। अरे ये क्या हो गया है, इसमें तो गॉड ने कुछ भलाई नहीं की, इसमें मैं ये नहीं सोचती हूँ कि आगे कुछ जाके बड़ा ही अच्छा ही होने वाला है। अरे अभी मुझे बहुत पेन है, ये गलत बात है। ये पॉजिटिव थिंकिंग का चीजों का पोटला बना के मैं माड़िए पे रख दूंगी और फिर से मेरी वही नेगेटिव थिंकिंग वाली गाड़ी चलने लगेगी, क्योंकि वो मुझे वर्क नहीं की। दूसरा क्या होता है कि कहीं पे हमें जाना है, वहां की टिकट मिलना और सब कुछ बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी सब बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। जैसे एक मैडम ने बताया कि मेरे बच्चे ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, मतलब अब्रॉड है, भटनागर मैम ने बताया, तो उनको वहां जाना है, उनका वीजा अभी रिन्यू करना है और थोड़े ही दिन का गैप है। तो सब बोलेंगे पॉजिटिव थिंकिंग रखो कि आपका हो जाएगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखो आपका हो जाएगा, इतने में टिकट मिल जाएगी, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एंड शी स्टार्टेड पॉजिटिव थिंकिंग, मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। व्हेन वी डू ओवर पॉजिटिव थिंकिंग एंड सरेंडर, प्रैक्टिकल लाइफ में कभी कभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और हमें लगता है कि हो जाएगा, बट वो कभी कभी नहीं होता है, राइट। सो पॉजिटिव थिंकिंग में वी विल लूज द चांस टू मेक अ प्लान बी, कि अगर मुझे ये एयरलाइन में टिकट नहीं मिल रही है तो मेरा प्लान बी एयरलाइन का होना चाहिए। ये एयरलाइन में पैसा ज्यादा है तो मैं यहाँ पे नहीं लूंगी, ये एयरलाइन शायद मुझे जो सिटी में जाना है वो सिटी में नहीं जा रही है, दूसरी सिटी में जा रही है, तो माई फर्स्ट प्रेफरेंस इज नॉट दैट, बट वी विल स्टार्ट कीपिंग अवर सेकेंड प्रेफरेंस, अवर प्लान बी। जबकि हम सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग, सब लोग बोलेंगे अरे तू इतना भक्ति करती है, इतना सारा सुनती है, सिर्फ की पॉजिटिव थिंकिंग, क्या आपका तो सब मिल ही जाएगी टिकट। सो मिल जाएगी टिकट करके हमने प्लान बी नहीं बनाया, नहीं मिला, अगेन वी विल पुल डाउन, अगेन वी विल गो बैक टू अवर नेगेटिव थिंकिंग। ये पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ फायदा नहीं होता है। मैंने तो हमेशा सोचा था मिल जाएगी मिल जाएगी, नहीं मिली। सो देयर ऑल्सो टोटल पॉजिटिव थिंकिंग मिलने से आपको जो बुरी सिचुएशन है उसके साथ प्लान करने को टाइम नहीं मिलता है। सो वो भी एक चीज होती है, इसलिए मैं बोलती हूँ एकदम पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, हेल्दी थिंकिंग, ताकि हम प्लान बी
बना सके। तीसरी चीज है कि पॉजिटिव थिंकिंग की शायद डेफिनेशन समझने में गड़बड़ हो गई है। हम पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या मानते हैं? मुझे सब कंफर्टेबल मिलेगा, मुझे सब कंफर्टेबल मिलेगा, आई एम हेल्दी, उसे हम पॉजिटिव थिंकिंग मानते हैं। हो सकता है कि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है कि मुझे जो मिलेगा उतने में मैं कंफर्टेबल रहूंगी। समझे? दो चीज, ऑल इज वेल, आई एम हेल्दी। सो आई एम हेल्दी वाला पॉजिटिव थिंकिंग हम अगर 100% एक लेवल पे पहुंच रहे हैं उसके बाद रखो, नो प्रॉब्लम। बट जब हम बिगनर्स है तभी अगर वो बिलीफ हम रखेंगे और हमारी बिलीफ नहीं फुलफिल होगी, देन वी विल गो डाउन, वी विल फील डिप्रेस, वी विल फील एंग्री एंड वी विल स्टॉप थिंकिंग पॉजिटिव, वी विल अगेन गो टू आवर रूटीन। उसकी वजह से हमारी जो पॉजिटिव थिंकिंग का जो है उसमें हम थोड़ा ऑल्ट्रेशन, that I will be comfortable in whatever I will get. I will be happy in the situation I am. यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? मेरी सिचुएशन अच्छी होगी, मुझे बहू अच्छी मिलेगी, मेरी बाई सब काम एकदम क्लीन करेगी, I will be able to handle my maid, या I will be able to clean it by myself again. सो ये जो है पॉजिटिव थिंकिंग का एक सबसे अच्छा फायदा क्या है कि दैट गिव्स यू होप। जिंदगी में होप इज नेसेसरी। होप अगर जिसके पास नहीं है ना, वो इंसान जी नहीं सकता है, क्योंकि उसको कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, तो वो हमें वो नीचे और नीचे और नीचे ही खींचता जाएगा। अगर उसको होप है तो उसको जिंदा रहना रह सकता है। एंड इन लाइफ मिरेकल्स डू हैपन। मिरेकल्स बहुत सारे होते हैं, बट उसके लिए भी अंदर से होप होना जरूरी है। सो पॉजिटिव थिंकिंग विल हेल्प यू के होप्स। बट पॉजिटिव थिंकिंग में अगर आप अपनी थिंकिंग, अपनी थॉट्स थोड़ी ऐसे चेंज करें, थोड़ी प्रैक्टिकल ले, जिसको मैं हेल्दी थिंकिंग बोलते हो कि आई विल गेट पेन फ्री लाइफ, तो ये हुआ टोटल पॉजिटिव थिंकिंग। फिर जरा भी बॉडी में पेन आया नहीं सहन हुआ, क्योंकि हमारा कोई प्लान भी ही नहीं है। अरे मैं जाऊंगी ना वहां तो बेटी को मिलने जा रही हूँ, नवासियों को मिलूंगी, मुझे बिल्कुल बॉडी में पेन होगा ही नहीं। मैं तो एकदम पॉजिटिव थिंकिंग से जा रही हूँ, ना यहाँ से मेडिसिन ली न कुछ। वहां जाके नवाज के साथ खेलते खेलते थोड़े गिरे, थोड़ा पेन हुआ घुटने में इधर उधर, क्या करोगे फिर? वहां पे सारी दवाई भी ऑन काउंटर नहीं मिलेगी। सो कीप हेल्दी थिंकिंग, कीप हेल्दी थिंकिंग दैट आई विल हैव पेन फ्री लाइफ, but I will take all the precautions. उसको बोलते हैं hope for the best and prepare for the worst. Right. Hope for the best मतलब best ही सोचोगे हमें कुछ नहीं होगा, but prepare for the worst. So यहाँ पे to get into this situation, मैं क्या कहती हूँ, हमारे जितने भी नेगेटिव थॉट्स है, हमारे जितने भी फियर्स है, हमारे जितने भी ऐसा लगता है एंजाइटी है, सारी एक पेपर पे नोट डाउन करो कि ये हो सकता है, मैं वो हो सकता है, वहां मेरा पासपोर्ट गुम हो सकता है, मेरा फोन गुम हो सकता है, यहाँ ये हो सकता है, वो हो सकता है। सारे नेगेटिव थॉट्स नोट डाउन करो ऑन द पीस ऑफ पेपर। यू नो, नोटिंग डाउन इज ऑल्सो रियली 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 हेल्पफुल। कभी कभी अदरवाइज ऑल्सो लाइफ में आपको कोई चीज बहुत बॉदर कर रही है और घड़ी घड़ी कोई विचार आ रहा है ना, एक बार पेपर पे पूरा लिख दो, पूरा वाक्य, मतलब आपको क्या सोच आ रही है, क्या फील कर रहे हो, क्या लग रहा है, पूरा लिख दोगे ना, फिर वो ओवर थिंकिंग कम हो जाएगा। सो नोटिंग डाउन इज रियली हेल्पिंग दैट। एट द सेम टाइम यहाँ पे हम सारी चीजें नोट डाउन करते हैं कि मुझे ये डर सता रहा है, देन होप फॉर द बेस्ट कि ये इसमें से कुछ नहीं होगा। बट ये सारी चीजें के सामने उसके सॉल्यूशन लिखो। मतलब मुझे शायद वहां बुखार आ सकता है, आई एम टेकिंग क्रॉसिन फ्रॉम नाउ, फुल स्टॉप। ये हो सकता है, आई एम टेकिंग पेन किलर, फुल स्टॉप। मेरी एग्जिस्टिंग डिसीज 2 महीने की है, मैं 2 महीने के लिए जा रही हूँ, मैं 3 महीने की दवाई ले जा रही हूँ। शायद वहां पे ज्यादा रुकना पड़ा, अभी कोरोना के टाइम पे किसी को कुछ नहीं मालूम पड़ा था, अचानक से ही जहां थे वहां स्टॉप।
सो मैं 2 महीने, अरे फिर हम क्या करते हैं, सोचते रहते हैं, अरे ज्यादा रुकना पड़ा था, ज्यादा रुकना पड़ा था। आई एम टेकिंग उसका उपाय क्या है, आई एम टेकिंग 3 months मेडिसिन, फुल स्टॉप। सो मेरा क्या कहना है, सारे नेगेटिव थॉट्स नोट डाउन करो वन बाय वन। सारे नोट्स के लिए व्हाट एक्शन वी कैन टेक, वो सारे नोट डाउन करो, टेक दैट एक्शन। अभी जब प्रॉब्लम है और उसका जब तक सॉल्यूशन नहीं मिलता है ना, वो हमारे दिमाग को खाता रहता है। एक बार प्रॉब्लम हुआ, उसके लिए हमने प्लान कर दिया, जब प्लान कर दिया फिर वो प्रॉब्लम को छोड़ दो एंड स्टार्ट टू पॉजिटिव थिंकिंग। क्योंकि अभी हमने जो हमसे बेस्ट बन पड़ता है वो हमने कर दिया, अभी आगे जो होगा वो हमारे हाथ में ही नहीं है, हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। किसने सोचा था कि कोरोना में 6 महीने तक का गैप पड़ जाएगा, सब जहां है वहां रह जाएंगे। सो वी आर नॉट गोइंग टू कैरी एवरीथिंग फॉर 6 months, बट जितना हम कर सकते उतना किया, उसके बाद में छोड़ दो। बिकॉज वी कांट मेक 100% फुल प्रूफ लाइफ, 100% फुल प्रूफ हो ही नहीं सकता है। सो डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। सो सारे नेगेटिव पॉइंट्स को आपने नोट डाउन कर दिया, उसके बाद में सारे नेगेटिव पॉइंट्स के लिए अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगी वो नोट डाउन कर दिया, एंड देन स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, कीप दैट पेपर असाइड, स्टॉप थिंकिंग अबाउट। फिर से वो मगज में विचार आया, फिर से पेपर में देख लो, अच्छा इसके लिए तो मैंने ये किया है, छोड़ दो। ऐसे करने से क्या होगा कि आपको उससे बेहतर सॉल्यूशन ध्यान में आएगा, बिकॉज योर क्रिएटिविटी विल स्टार्ट वर्किंग। जब तक आप नेगेटिव करते हो क्रिएटिविटी नहीं वर्क करेगी, अरे क्या होगा क्या होगा, क्योंकि वो चिंता लेती है। नाउ योर क्रिएटिविटी विल स्टार्ट वर्किंग, नाउ योर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी विल स्टार्ट वर्किंग, बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग व्हाई मी, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों होगा, यू आर थिंकिंग इफ देन। सो इफ एंड देन इज बेटर देन व्हाई मी, बराबर है। सो होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। पॉजिटिव थिंकिंग में जो आपके अफर्मेशंस है उसमें भी वो लोग बोलते हैं आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। अगर दैट अफर्मेशन इज वर्किंग फॉर यू, ग्रेट, कीप सेइंग दैट अफर्मेशन। इफ ऐसा हो रहा है कि आई एम हेल्दी आप बोल रहे हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप वो मैसेज दे रहे हो, बट योर कॉन्शियस माइंड इज कॉन्स्टेंटली बॉदरिंग एंड बोल रहा है नहीं नहीं बट तू तो हेल्दी नहीं है, नहीं नहीं बट तू तो ये दवाई लेती है, नहीं नहीं तो ये ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा होता है ये भी से कि वी आर सेइंग दिस अफर्मेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड बट वी आर नॉट गेटिंग रिजल्ट, क्योंकि हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में फाइट चलती रहती है। So that time we can do little alteration in our affirmation. I am getting healthier every day. So फिर हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो फाइट नहीं करेगा सबकॉन्शियस माइंड से। जब हम बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, आई एम हेल्दी, आई एम गेटिंग गुड, और अगर आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों वो मान रहे हैं, अच्छी बात है। कभी कभी बहुत इंटेलिजेंट लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, उनका कॉन्शियस माइंड बोलता है नहीं 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 ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। सो वहां पे change your affirmation to little more alteration, that I am getting healthier every day. So here your conscious and subconscious mind will be on the same page and you will get healthy every day. Right? सबको यहाँ सब कुछ समझ में आ गया? Yes. Yes. राइट। Very एंड nice. दूसरी एक चीज है कि हैप्पीनेस, जहाँ पे हम लोग ने हैप्पीनेस के बारे में हम हमेशा बात कर रहे हैं। सो माई हैप्पीनेस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब Yes. रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप सबने बताया कि आप क्या वर्क करते हो, आप क्या काम करते हो, राइट, एवरीडे। उसके साथ में एक चीज मन को कहने की भी मैं बताती हूँ। एवरी डे व्हेन यू गेट अप, से I will choose to be happy in any situation. So क्या होगा कि you are giving that message to your subconscious mind that I am choosing to be happy. Same situation में दो लोग होते हैं, पर एक हैप्पी होता है, एक नहीं होता है, क्योंकि many a time happiness ऑटोमेटिक नहीं आती है, वो हमें चूज करनी पड़ती है। वो हम we choose to ignore certain things. सब कोई सब कुछ इग्नोर नहीं कर सकता है, कोई एक चीज इग्नोर कर सकता है, कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता है। So when we are saying
I will choose to be happy in any situation. और today I am choosing to be happy. So वहां पे आप पावर अपने हाथ में लेते हो कि सिचुएशन के हाथ में कुछ नहीं है. सिचुएशन आती रहेगी जाती रहेगी. आई एम चूजिंग टू बी हैप्पी एंड व्हेन यू विल डू दैट थिंग, जैसे रजिया मैम ने बताया था कि चप्पल टूट गई बट शी चोज टू बी हैप्पी. सो व्हेन वो ऐसा भी कर सकती है, अरे यार ये उतरते रिक्शा उतरते ही नहीं चप्पल टूट गई, अब मैं घर तक कैसे जाऊंगी, अरे यार और एक खर्चा आ गया, अरे अभी तो मैं बाहर से आई, अभी फिर से मुझे शॉपिंग करने जाना पड़ेगा. देयर आर एन नंबर ऑफ टोटल अपने नेकलेस की तरह बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं. बट शी चोज टू बी हैप्पी. शी चूज टू गेट दैट थॉट इन हर माइंड कि चलो अच्छा हुआ मुझे नई चप्पल मिलेगी. सो आई एम चूजिंग टू बी हैप्पी. दैट इज द first thing we have to decide, that I am choosing to be happy. Okay, all clear? Yes. Yeah. Yes. जैसे अब हम शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन थॉट पैटर्न टू अनदर थॉट पैटर्न, थोड़ा ब्रेन को भी टाइम लगेगा ना. सो can we play 1 minute brain gym game? Yes. Okay, all are okay? Okay. सिर्फ हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल है. One like this, one like this, right? And when I say change, तभी change होगा. तो मेरा ये हाथ है वो ऐसे होगा, ये हाथ ऐसे होगा. Yes. Change. Yes. अभी 2 बार मैं करती हूँ, आप लोग देखो और उसके बाद आप लोग भी करना. And I will just say change. Okay? यहाँ देखो मेरे दोनों हाथ चेंज होते हैं. जब मैं से when I say change, I am changing my both hands. Here my one like this. Change, 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 change. शुरू में क्या होगा कि चेंज करने जाओगे तो शायद दोनों हाथ अपनी ओर आ जाएंगे या दोनों हाथ ऐसे होंगे. दोनों हाथ अपनी ओर नहीं करने हैं, एक हाथ इधर एक हाथ इधर. Everybody, Yes. raise your hand. Right, Jagruti ma'am. Okay, now 1, 2, 3, start. Change, 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 change. Razia ma'am, change, 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 change. Stop. One more time. Right? Start. Change, 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 change. Good. ये हमारी फुल पाम की थी. अभी सिर्फ फिंगर के साथ. एक हाथ में ये 5 फिंगर में दिखा रही हूं, एक हाथ में सिर्फ एक फिंगर दिखा रही हूं. Okay. राइट? एक में 5 और एक में 1. अभी चेंज पहले मैं करती हूं, आप लोग देखो फिर करना. राइट? जागृति मैम बराबर है. चेंज, 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 चेंज. नहीं, बंद नहीं करनी है. भटनागर मैम बंद नहीं करनी है. एक खुली एक, फिर ये चेंज, 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 चेंज. Okay. Okay. नहीं, मुट्ठी नहीं बनानी है. 5 फिंगर या 1 फिंगर. क्लियर? स्टार्ट. चेंज, चेंज. ये दोनों हाथ यूज करो. भटनागर मैम ऐसे करो. ओके, फर्स्ट वी विल स्टार्ट. रफिया मैम, भटनागर मैम, देखो जागृति मैम ने ये किया है. शी इज थरो. पहले ये करो. हम लोग बहुत धीरे धीरे जाएंगे. अब जिसमें 1 फिंगर है उसको 5 करो और 5 है उसमें 1. Okay. फिर से ऐसे चेंज. मुट्ठी नहीं बनानी है, दोनों हाथ खोलने नहीं है. एक में 1 फिंगर दिख रही है, एक में 5. अब जिसमें 1 दिख रही है उसमें 5, 5 दिख रही है उसमें 1. राइट. अब अगेन उल्टा. नहीं, एक हाथ में 5 फिंगर होगी मेरी खड़ी. भटनागर मैम आपने मुट्ठी बना दी है, खोलो 5. हाँ. अभी ये हाथ में 5, ये हाथ में 1.
एक, हाँ, वेरी गुड. सो ऐसे जैसे पहले आप बहुत स्लोली करो, बिकॉज क्या मैं बोल रही हूँ हमेशा कि जो हम एक चीज से दूसरी चीज में जाते हैं, सो आवर ब्रेन विल टेक टाइम टू शिफ्ट. सो पहले नहीं होता है तो एकदम आराम से करो. एवरीबडी विल डू एट देयर ओन स्पीड, और फिर जैसे जैसे होता जाता है थोड़ा फास्ट करते जाओ. यस. Okay, nice game. And last one is okay. O and K. Jagruti ma'am, O. आप ही शुरू करो. O and K. K is 2 finger. Right? This O is my circle. O and K. Then here. ये K है, ये O है, फिर ये O, ये K. Okay? Okay. Okay? नहीं, एक O रहेगा तो दूसरे में 2 फिंगर खड़ी होगी. फिर ये O तो ये 2. ओके. Okay. 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 ओके. Okay. Should we end our session with this? Okay. Very nice. ओके. थर्ड वाला कठिन है. हाँ, थोड़ा कठिन है वो थर्ड वाला, इसीलिए पहले हो एकदम इजी जाएगा, वाला हो किया, जाएगा, हो जाएगा. फिर मिडल वाला, एंड लास्ट में धीरे धीरे ओ. अपने करते हैं. ओके. ओके. ये